protection of life and liberty, sorry, personal liberty. Article 21. Basically, Article 21 of the Constitution provides that no person shall be deprived of his life. First thing, you need to focus, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. It means a procedure established by law provides for taking away the personal liberty of life anyone, then only it can be taken away, otherwise not. Now there were two three important cases: AK Gopalan case, Maneka Gandhi case. So we'll discuss these things because discussing these cases would make you understand this concept very clear. So prior to Maneka Gandhi's decision, Article 21 guaranteed the right to life and personal liberty to citizen only. Prior to Maneka Gandhi, against the arbitrary action of the executive and not from legislative action. So initially it was available against the executive action, not against the legislative action. This is the important one. The state could interfere with the liberty of citizen if it could support its action by a valid law. It means क्या था? What was the position? Then it could brought a law and then it could justify its action that okay, we'll pass the law and then we'll do whatever we wanted to do. So this was the position. Only executive action was barred, but not legislative action. So what they used to do, they used to bring the law and then accordingly they could do whatever they wanted to, and they were able to interfere with the liberty of citizens. But what happened that after the Maneka Gandhi's decision, after Maneka Gandhi decision, Article 21 protects the right to life and personal liberty not only from the executive action but from the legislative actions also. So before Maneka Gandhi, what was there? Whatever kind of law they could bring, and then the state could interfere in the liberty of anyone. But after Maneka Gandhi, the restriction has been imposed on legislature also. This much is clear or not? When I'm saying legislature, it means that parliament cannot bring any law
that has the potential or that can possibly interfere with the liberty of any person. It means that the law should not be, if it is justified, then it's fine, but if it is not justified, then it will not be allowed. Then a person can be deprived of his life and personal liberty if two conditions are complied. First one is there must be a law. Second, there must be a procedure prescribed by that law. You can note down these things if you want to. Provided that the procedure is just, fair, and reasonable. You can note down this thing. This year UPSC asked some question on this, right? What was that question? Let's see that Sir, question. it's about due process of law. It was about due process of law or procedure established by law. Let's see what was that question. Okay, it was related to due process. We'll see it later on. We'll see this. So now life can be taken away, but there should be, there are two conditions and that should be satisfied. First one, there must be a law. Second thing, there must be a procedure prescribed by that law. I mean, this law. First, there should be a law, and then this law should prescribe the procedure, and the procedure should be just, fair, and reasonable. This is nothing but due process. Remember this thing. Let's talk about American, in American context. The Fifth Amendment of American Constitution also provided. Now we are talking about American concept, and what Americans have, they have due process, right? So, Fifth Amendment of US Constitution. It provides that no person shall be deprived of his life or personal
liberty except due process. Okay, and if I have to write exactly, so maybe I'll write citizen not to be subject to criminal prosecution and punishment without due process. This is what American position is. Then the 14th amendment also US constitution, it also imposes similar kind of limitation on the state authorities. So this is what about US. So US follow perfectly in their constitution also mention this due process term. Now we'll understand what is the meaning of personal liberty. See, if you see that then in most of the cases I am comparing the constitution with American constitution mostly. So please at least remind this thing. Keep it, at least remember these things because what if they ask this kind of question? What if they ask the difference between Indian position and US position? In India, the right guaranteed in under article is available to citizens and non-citizens. Now we'll talk about personal liberty, meaning and scope, and we'll go back to A.K. Gopalan versus this case name you can remember Union of India. It was kind of restrictive interpretation. So what happened that the petitioner A.K. Gopalan, he was a communist leader. He was detained under the Preventive Detention Act 1950. What petitioner did? He challenged the validity of his detention under the act on the ground that it was violative of his right to freedom of movement under Article 19(1), which is very essence of personal liberty that is guaranteed by Article 21 of the Constitution. Now, though it's not very much important for you to know these things, but
For a better understanding of and better clarity, I'm going to discuss the argument made by the Eki Gopalan. He said that the words personal liberty include the freedom of movement. So what he's saying that if you have a personal liberty, then it also includes freedom of movements. And therefore, this law, that is Preventive Detention Act 1950, must also satisfy the requirement of Article 19, Clause 5. In other words, the restriction imposed by the detention law on the freedom of movement must be reasonable under Article 19.5 of the Constitution. Article 19, Clause 1 and 21 should be read together. What he's saying? He's saying that 19.1 and 21, read them together. Then only we'll get the meaning. Because 19.1 deals with substantive right and 21 deals with the procedural right. In Article 21, what he said, A.K. Gopalan said that in Article 21 there is this expression procedure established by law. So he said it means due process of law of the American Constitution. So he said that this American Constitution, due process of due process of law of the American Constitution, it includes the principle of natural justice. And since he said that impugn law does not satisfy the requirement of due process, you need to understand that due process, what he's saying it includes principle of natural justice. He's not saying that due process is principle of natural justice. Are you understanding concept or not? Tell me. Am I audible or not? Yes, sir. Okay. So what he's trying to say that due process include principle of natural justice. He is not saying due process is principle of natural justice. And he said that this law, it does not satisfy the requirement of due process and therefore it's an invalid law. Supreme Court rejected both the contention. Court said that personal liberty in Article 20 means nothing more than the liberty of the physical body. This is what Supreme Court said in A.K. Gopalan case. Then court said that is freedom from arrest and detention without the authority of law. The court said the personal liberty that is given by the Professor Dicey means freedom from physical restraint and coercion, which is not authorized by law. The word liberty is a very comprehensive word, and if interpreted, it is capable of including the rights mentioned in Article 19. But the word personal, which qualifies the word liberty, and therefore personal liberty is narrowed down to the meaning in English law to the expression liberty of the person. Article 19 and 21 deals with different aspect of liberty. 21 guarantees against deprivation of personal liberty, while 19.1 afford protection against unreasonable restriction on the right of movement. And freedom guaranteed by Article 19 can be enjoyed by a citizen only when he is a free man. So what court is saying that if you are a free man, then only you can enjoy the freedom.
and not if his personal liberty is deprived under a valid law. So this is what had happened in A.K. Gopalan case. This point is till now it's a clear or not? Second, what is the meaning of law? Law means स्टेट मेड लॉ. जो हम लोग पार्लियामेंट में लॉ बनाते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबलीज में लॉ बनाते हैं. एंड कोर्ट सेट नॉट द प्रिंसिपल हियर, नॉट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो जो हमारे यहाँ जो पहले प्रिंसिपल जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ था, तो एक तरीके से समझ लो कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई दी पार्लियामेंट. एक या जो लॉ है, लॉ के द्वारा लॉ कौन बनाता है, मतलब आप एक समझ लो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ वही उस एक्सप्रेशन की मीनिंग थी, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ की. उससे ज़्यादा उसमें कुछ था नहीं. ठीक है. अब फिर और भी बीच में केसेस आए जिनको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब मेन केस हम लोग डिस्कस करते हैं मनेका गांधी का. एक ही गोपालन की पोजीशन आपको समझ में आई कि नहीं आई, कि कैसे इंटरप्रिटेशन चेंज हुआ इसका. Maneka Gandhi case. So it has provided a new dimension. It was Maneka Gandhi versus Union of India case, and the meaning and content of the words personal liberty again came up for the consideration before the Supreme Court. In this case, the court has given the widest possible interpretation. जितना वाइड इंटरप्रिटेशन हो सकता था, widest possible interpretation to the words personal liberty. So I'll tell you what had happened in this case. In this case, the petitioner was Maneka Gandhi. Her passport was impounded by the central government under some section of Passport Act. The act authorized the government to do so if it is necessary in the interest of general public. क्या बोला कि गवर्नमेंट किसी का भी पासपोर्ट कर सकती है impound if it is in the general interest of public. Then the government of India declined in the interest of general public to furnish the reason for its decision. अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस पासपोर्ट भी इम्पाउंड कर दिया, और इम्पाउंड करने के बाद कह दिया कि भाई इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वी विल नॉट गिव द रीजन. Then Maneka Gandhi challenged the validity of the said order on the following ground. She said that this section, basically the name of section was section 10 clause 3 subclause C, was violative of article 14 as conferring an arbitrary power, since it did not provide for a hearing of the holder of the passport before the passport was impounded. तो उन्होंने कहा कि पासपोर्ट को इम्पाउंड करने से पहले, उसको टेक ओवर कर लेने से पहले एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी तो देनी चाहिए थी ना, कम से कम बुलाया जाता, सुना जाता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो जिससे मेनका गांधी ने कहा कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है. सेकंड, what she said, that section 10(3)(c, the same section,
it was violative of Article 21. Now, what reasons she has given? She said that since it did not prescribe procedure, it did not prescribe procedure within the meaning of Article 21. Third, it is also violative of Article 19(1)(a) and G, since it permitted imposition of restriction not provided in clause 2 or 6 of Article 19. Then the government of India filed an affidavit, and they have given the reason that the petitioner presence was likely to be required in connection with the proceeding before a commission of inquiry. And then, regarding the opportunity to be heard, the Attorney General of India said that the petitioner could make a representation in respect of impounding passport, that the representation would be dealt with expeditiously in accordance with law. So this is what government has said. Then I'm coming to the point that what Supreme Court said. The court said that the government was not justified in withholding the reasons for impounding the passport from the petitioner. The court said, although there are no positive words in the statute requiring that the parties shall be heard, at justice of the common law will supply this omission of legislature. The power conferred under this particular section that we were talking of, Passport Act, to impound a passport in a manner that is not judicial in the nature, the rule of natural justice would therefore be applicable in exercise of this power. So, what is rule of natural justice says? It says that no one should be judged in their own case. The people should be given fair opportunity. That's what it says. So, court said that natural justice is a great humanizing principle and intended to invest law with fairness and to secure justice. Fairness in action therefore demands that an opportunity to be heard, opportunity be heard should be given to the person affected. That's what the court has said. And then court also said that a provision requiring of such opportunity to the affected person can and should be read by implication in the Passport Act 1967. So all these things the court said, and then the court said that the procedure prescribed for impounding passport should be right, fair, and just. So what it is saying, that procedure should be right, fair, and just, and it should not be unreasonable and arbitrary. So this is what court said. Anyone, if you have any doubt? Anything? Okay. Uh, so again, I'll repeat that it was, the great emphasis was given, and the Supreme Court let down great stress on procedural safeguards. What is procedural safeguards? If anyone can tell me. If you can tell me what is procedural safeguard. And if you don't know, then why don't you ask me also? कोई बताएगा क्या है प्रोसीजरल सेफगार्ड? सम्राट, आप बताओगे?
I think Samrat is not here. Yes, Monica. So procedural safeguards are something like we have policies. So policies or some rules and regulations which are already put in the place. We can uh, uh, use it in certain circumstances whenever there is a requirement. So those are known as procedural safeguards. You're saying that you have a policy and the policy can be used. That's what you're We saying. can, yeah, we have a policy in our place. Like, for example, in law, we have a law which we follow. And if there is any problem related to that, we can put that law in place and we can say, provide the protection and all. So, same way, there are Monica, your voice is breaking. protect. Your voice is breaking. I couldn't hear. So, this is the thing, sir. Listen, procedural safeguard means that simple understand this thing. Maneka Gandhi's passport was impounded. Now she was not while impounding this passport, the procedure was not followed properly. Had she given the opportunity, she would have given the reason, then we would have said the procedure has been followed. So this procedure was there to safeguard Maneka Gandhi. All right, that if the procedure is not being followed, then your passport cannot be impounded. So procedure is already there in criminal law, in every law you'll find, and that procedure has to be followed. If it is not followed, then things cannot be done. Getting my point? So this is called procedural safeguard. That law, some law is there, एंड दैट लॉ इज़ डिफाइनिंग द प्रोसीजर कि अभी मैं आपको बताऊं कि जैसे अमेंडमेंट के बारे में मान लो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उसका एक प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने का. अगर आपने उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया तो फिर अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा या उसको चैलेंज बहुत आसानी से किया जाएगा एक ही ग्राउंड पे कि प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया अमेंडमेंट लाते समय. अब कहीं पे मान लो 50% स्टेट की एसेंट चाहिए और उसकी एसेंट से पहले ही अप्रूवल से पहले ही क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ने उसको एसेंट दे के एक्ट बना दिया, तो आपने सही से प्रोसीजर नहीं किया ना. तो जो प्रोसीजर है वो सेफ गार्ड करने के लिए किसी भी चीज़ को, तो यही इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स. समझ में आया? So the court said that the procedure must satisfy the requirement of natural justice. It must be just, fair, and reasonable. ठीक है. So again, I'll list down certain condition. There must be a law. These are the conditions that should be followed in Article 21 before a person is deprived of the even let's talk about property also. The procedure must be, first thing, there must be a valid law. Second thing, the law must provide a procedure
third thing, the procedure must be just, fair, and reasonable. Fourth thing, the law must satisfy the requirement of Article 14 and 19. That's it. It must be reasonable. That's what said. So this is the meaning of procedure established by law right now. That there must be a valid law, and the law must provide a procedure. See, this this was the earlier position, but this is the element of due process. The due process say that the procedure must be just, fair, and reasonable. So this element we did not have initially, but after Maneka Gandhi it came. So earlier what was the position कि अगर मान लो मोनिका को घर जाने से रोकना है, ठीक है, और मान लो कि क्या किया, तो उन्होंने उन्होंने कह दिया कि भाई अब आप मोनिका आप ट्रैवल नहीं कर सकती हो, ठीक है, एक लॉ लेकर आ गए, और ये नहीं देखा कि लॉ सही है या गलत है, ठीक है, बस अगर किसी चीज़ के लिए आपके पास कानून है तो उस कानून को अप्लाई करके आप लोगों को रोक सकते हो, आपका जो मन में आए आप वो कर सकते हो। आप ये नहीं देखोगे कि वो कानून वैलिड है कि नहीं है, वो जस्ट है कि नहीं है, वो फेयर है कि नहीं है, वेदर इट्स रीजनेबल और नॉट। ये चीज़ें मिसिंग थी स्टार्टिंग में। बस आपके पास कानून होना चाहिए और फिर आप उसको अप्लाई करो और जो मन में आए वो करो। बट अब क्या हो गया है कि इवन जो लॉ है आप उसकी वैलिडिटी को भी चैलेंज कर सकते हो। आप कह सकते हो जस्ट नहीं है, फेयर नहीं है, रीजनेबल नहीं है, और इवन यू कैन चैलेंज द सेम ग्राउंड ऑन दी, यू कैन चैलेंज द सेम लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19 ऑल्सो। सो अब ऐसा है 14, 19 और 21 इसको एक तरीके से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है, इनको साथ में देखा जाना चाहिए। दे आर ट्रिनिटी। समझ में आ गया आपको? आपको प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इतना था, देखो सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो हम लोग मानते थे वो इतना था। फिर ये चीज़ है ड्यू प्रोसेस, कि जो लॉ है वो लॉ भी जस्ट एंड फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। समझ रहे हो आप? और जो लॉ प्रोसीजर डिफाइन कर रहा है वो प्रोसीजर भी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। ये है ड्यू प्रोसेस का एलिमेंट। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये चीज़ बताओ। यस सर, सेकंड लाइन में ये लास्ट वर्ड क्या लिखा है? द प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड नो सर, रीजनेबल। सर द लॉ मस्ट प्रोवाइड The law must provide a procedure. ओके। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। आप बताओ आप लोग क्या आंसर होगा इसका? सर मैंने टिक तो फर्स्ट करा था, बट नाउ आई थिंक द आंसर विल बी थर्ड।
Am I audible? Yes, sir. हाँ, आप मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा. Sir, I was saying मैंने पेपर में फर्स्ट टिक किया था, but now I think then answer should be 3, fair application of law. ठीक है, आप इसको सी बोल रही हो. ठीक है, आप सी क्यों बोल रही हो? Sir, means on the basis of explanation like the Manika Gandhi case पे जो हमने discuss किया, so on the basis of that we get to know कि एसेंस में अगर हम बात करते हैं तो प्रोसीजर जो है वो प्रॉपर फॉलो होना चाहिए, तो उस केस में हाउ टू से लॉ फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल. आर्बिट्रेरी, हाँ आर्बिट्रेरीली कुछ भी नहीं हो सकता. हाँ, यस. अब देखो आप यहाँ से दो ऑप्शन तो आपके ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए. ठीक है, बट हम लोगों ने क्या देखा था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंक्लूड्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बट ये नहीं था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मींस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. आप समझ रहे हो, जो फेयरनेस है और ये है, ये नेचुरल जस्टिस का एक एलिमेंट है. अब यहाँ तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में क्या आता है, नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस. ठीक है, तो यहाँ तो जज करने की बात ही नहीं हो रही है. मतलब एक इसका प्रिंसिपल ये भी है ना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, दैट नो वन शुड बी जज इन देयर ओन केस. सेकंड चीज़ है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड विदाउट हियरिंग देम आउट. तो एक चीज़ है, इसीलिए मैं भी 3 के साथ जाऊंगा, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ. पता नहीं, बहुत सारे लोग हो सकता बोले कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, बट जो मुझे लगता है इन केसेस को पढ़ के और ये सब देख के, जो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, मैं वहाँ फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ बोलूँगा. आप कौन कौन अपीयर हुआ था इस बार? विनीत, संगीता. ठीक है, संगीता आपने क्या पिक किया था? सर थर्ड ऑप्शन. आपने थर्ड किया था? यस सर. अच्छा. पारुल, आपने क्या किया था? थर्ड. और मोनिका, आपने तो फर्स्ट किया था, है ना? इसके बाद विनीत, आपने क्या किया था पिक? थर्ड ऑप्शन. अच्छा, चलो उम्मीद है यूपीएससी थर्ड ही दे, क्योंकि यूपीएससी का कुछ ज़्यादा भरोसा होता नहीं है. लेकिन जो इन एसेंस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स दैट द फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ बेसिकली. ठीक है, एक चीज़ हो गई. अब एक चीज़ यहाँ इसमें बच रही है, उसको कर लेते हैं. नेचुरल जस्टिस को एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या, कि मीन्स इसमें एग्जैक्टली हम किस चीज को इंक्लूड करते हैं नेचुरल जस्टिस में? देखो, इसके दो प्रिंसिपल है. ठीक है, अब मैं आपको जो क्या कहते हैं लैटिन में लिखा है वो तो नहीं बताऊंगा, बट उसकी मीनिंग बता देता हूँ. एक है, नो वन शुड बी जज इन देयर ओन केस. सेकंड है, नो वन शुड बी कंडेम्ड और पनिश्ड without giving them an opportunity. ये दो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस के, कि आप किसी को पनिश करना है तो एटलीस्ट उसको सुनो, पहले उसका भी पॉइंट लो. ऐसे कहते हैं ना हम लोग, हमारे यहाँ आपस में भी बातचीत होती है, तो दो दोस्त हैं तो वो अपने कहीं कोई कहानी बता रहा है, तो अपनी कहानी में वो विक्टिम है और दूसरा विलन बन गया. ठीक है, तभी हम कहते हैं कि दोनों साइड का पक्ष जानना चाहिए, तब फिर आप डिसाइड करो. और अगर आप खुद की केस में जज हो गए, ठीक है,
तो आप फैसला अपने ही केस में दोगे ना। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके अगेंस्ट केस है। मान लो आपका कोई बहुत फास्ट फ्रेंड है, ठीक है, या कोई आपका रिलेटिव है या कोई आपका नोन टू है, तो जो कि आपका कंसाइंस बेसिकली टिल्ट कर सकता है। मतलब हो इमोशंस होते हैं ना, तो हो सकता है कि आप चाहो कि आपके दोस्त को जेल ना भेजा जाए। अब आप मान लो कल के दिन कोई यहाँ कोई है लॉ बैकग्राउंड से, एनीवन जिसने एलएलबी कर रखी हो या कोई लॉ बैकग्राउंड से है? कोई नहीं है, ठीक है। तो एकमात्र मैं ही हूँ जो लॉ बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। तो अब चलो मान लो कि कल के दिन मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद मेरे पास मेरे किसी दोस्त कई, मान लो आप ही लोग कोई आईएएस बन गए, ठीक है, कोई सेक्रेटरी पोस्ट पर हो, और मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब आपका कोई केस आता है मेरे पास, ठीक है, तो हो सकता है कि मेरा आपकी तरफ एक टिल्ट रहे कि ये लोग मेरे स्टूडेंट रहे हैं और ठीक है यार, थोड़ा सा इनके फेवर में चीज़ें कर दें। मतलब मान लो आप अपने डिपार्टमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट फिर भी एक वो टिल्ट रहता है, ठीक है। तो होता क्या है कि आपने देखा होगा कई बार जजेस अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं। रिक्यूज करने का मतलब वो अपने आप को हटा लेते हैं उस केस से। वो कहते हैं मैं इनको जानता हूँ या इनसे मेरा कोई रिलेशन है XYZ, तो मैं इस हियरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ, तो कोई और जज को लेके आओ। आपने सुना होगा, देखा होगा कई बार। तो वहाँ पे यही प्रिंसिपल फॉलो होता है, इसी प्रिंसिपल के कारण होता है। दूसरा, जब ऐसे तो मान लो कि कसाब था, ठीक है, कसाब को तो रंगे हाथों पकड़ लिया था कि नहीं पकड़ लिया था? हम लोग बहुत बहुत सारे टाइम लोगों को रेड हैंडेड कैच करते हैं, ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे कि भाई कसाब को तो गोलियां चलाते हो और रंगे हाथों पकड़ा, उसने तो वहीं सामने सामने मर्डर किया, तो उसको तो इमीडिएटली फांसी पर चढ़ा देना चाहिए था। लेकिन हम लोग वो करते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ये सेकंड प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि आपको पनिशमेंट देनी है, दो आप, लेकिन पहले आपको उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी अपने आप को रिप्रेजेंट करने की, सुनने की। तो यही दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पार्ट है। समझ में आ गया मोनिका? यस सर। सो सर, इन द बेसिस ऑफ दैट, अगर ये पहले पता होता तो ये भी मतलब एलिमिनेशन से चला जाता ये पॉइंट भी ऑटोमेटिक, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अगर हम बात करते हैं उस केस में तो। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेसिकली यही है कि द प्रोसीजर शुड बी फेयर, रीजनेबल एंड जस्ट। और जो लॉ की एप्लीकेशन है वो फेयर होनी चाहिए। लॉ ऐसा नहीं हो कि अनइवनली अप्लाई हो, और किसी के लिए कुछ और लॉ, किसी के लिए कुछ और लॉ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई लॉ अपने आप में ही गलत हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। इस हिसाब से जो 3 है वो मेरे लिए बेस्ट चॉइस रहेगी। हाँ, अगर हाँ, सर, हाँ बोलो। तो अभी फिर एज ऑफ नाउ आर्टिकल 21 में जैसे ये मेंशन है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, बट इन एसेंस में अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे अगर मतलब अपना जजमेंट देती है इस चीज पे, तो ये हम कंसीडर अभी भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ही फॉलो करते हैं, राइट? हाँ, अब हम ड्यू मतलब प्रोसेस ऑफ, अब से जब मनेका गांधी के केस से हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही फॉलो करने लगे हैं। वो एलिमेंट आ चुका है हमारे यहाँ। पहले था कि आप कानून बना दो, फिर आप उस कानून को चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि भाई ये कानून फेयर नहीं है। जैसे बहुत सारे लॉ आए, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, अब कई चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, उनको जस्टिफाई कर ले जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई चीज़ लेके आए हो वो एकदम अनजस्टिफाइड है। अब अगर कल के दिन ये लॉ आ जाए कि भाई जो है क्या कहते हैं, यूपी के लोग जो है एमपी में नहीं आ सकते और एमपी के लोग यूपी में नहीं आ सकते हैं, ठीक है, तो ये तो एकदम ही अनजस्टिफाइड नहीं हो जाएगा लॉ? मतलब आपको लगता है ये लॉ फेयर होगा? ठीक है, नो नो। नहीं होगा। अब पहले क्या था कि मान लो अगर ऐसा कानून आ गया कि भाई यूपी के लोग एमपी में नहीं आ सकते, सपोज कर लो आप इस चीज़ को, तो फिर आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कानून ऐसा कहता है। वो ये नहीं कहेंगे कि ये कानून गलत है, बस वो क्या कहेंगे कि ये चीज़ गलत तो है लेकिन कानून में लिखी है, तो फिर अब हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। बट अब यहाँ क्या है इस ड्यू प्रोसेस से कि आप उस लॉ को भी चैलेंज कर सकते हो। आप कह सकते हो कि ये बिल्कुल गलत कानून है, ये कोई फेयरनेस है कि भाई एमपी के लोग यूपी नहीं आ सकते, यूपी के लोग एमपी नहीं आ सकते,
ऐसे तो आप जो है डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हो एक तरीके से, या सेपरेटिज्म की बात कर रहे हो, है ना? दो स्टेट्स के बीच में सेपरेटिज्म की बात कर रहे हो, लोगों को बांट रहे हो आप, तो ये तो लॉ ही अनजस्ट हो गया। तो वही चीज़ है कि जो ड्यू प्रोसेस है वो ये चीज़ को देखता है, फेयरनेस को, कि लॉ भी फेयर होना चाहिए और जो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है वो भी फेयर होना चाहिए। दोनों चीज़ें फेयर होनी चाहिए। समझ में आ गया आपको? यस सर। सर तो इसको मतलब अभी कल जो मैंने पढ़ा था आर्टिकल 371A 371G नागालैंड एंड मिजोरम की नागालैंड केस में मिजोरम, हाँ। कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट आया। हम्म। यस सर। तो उन लोगों ने वो उसको हम्म अप्लाई कहाँ करवा रहे हैं? वो तो उन्होंने उसको अपोज किया है उनकी असेंबलीज में। अपोज किया हुआ है। हाँ तो सर ये जो अपोज किया हुआ है तो अच्छा ये जो अपोजिशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ जो आर्टिकल 371 है उसके बेसिस पे, नॉट बिकॉज ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, राइट? वो ऑब्वियसली देखो, वो हर आदमी देखता है फेयरनेस अपने एंगल से। आप समझ रही हो बात को, कि वो अपोज कर रहे हैं। वहाँ पे एक यस क्लॉज सर। है। क्लॉज क्या है कि बॉर्डर एरिया के 100 किलोमीटर में अगर कोई कंस्ट्रक्शन होना है, हम्म ठीक है, तो उस कंस्ट्रक्शन के हम्म लिए परमिशन की ज़रूरत है नहीं। समझ में है आपको? अब जो नागालैंड हैं और ये लोग हैं, हम्म। ये सब बॉर्डर स्टेट्स हैं, म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो अब इनको ये है कि भाई भाई हमारा 100 किलोमीटर का जो बॉर्डर से एरिया है, वहाँ तो सरकार कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकती है, ठीक है। हमारी कोई परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है, ना स्टेट के फॉरेस्ट कमीशन की परमिशन की ज़रूरत, ना किसी की ज़रूरत है। तो उस चीज़ को वो अपोज कर रहे हैं कि हो सकता है कि इनके कंस्ट्रक्शन से हमारे कल्चर पे खतरा आ जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, उनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो तो इस तरीके से हाँ उनको वो जस्ट नहीं लग रहा है। समझ गए आप? कि जो वो लॉ लेके आए जस्ट नहीं लग रहा है। अब इसको कौन डिसाइड करेगा ये जस्ट है कि नहीं या फेयर है कि नहीं? इसको कोर्ट डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट। हाँ बिल्कुल। अब ये कोर्ट में चैलेंज होगा। कोर्ट में जब चैलेंज होगा तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये अमेंडमेंट जो है वो फेयर है कि नहीं है। बस, फेयर एंड रीजनेबल है कि नहीं है। बट उसमें नेशनल सिक्योरिटी वाला एंगल डाल देंगे तो उसको फेयर करवा लेंगे, आप देखना, ओके ओके। है ना? तो ये चीज़ है। सर एक डाउट था। क्या? सर यही वाला क्वेश्चन में अगर एक ऑप्शन दे दे ऑल ऑफ द अबव, तो वो सही हो सकता है क्या? कौन सा क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कहाँ गया? ये वाला इसी हाँ में? हाँ नहीं, ऑल ऑफ दी अबव तो हो नहीं हाँ। सकता। इक्वलिटी बिफोर लॉ तो बिल्कुल नहीं है। इट्स अ टोटली नहीं डिफरेंट तो पॉइंट। फेयरनेस में इक्वालिटी भी आ जाएगी ना, मतलब नहीं, जो लॉ बने। इक्वलिटी बिफोर लॉ की मीनिंग कुछ और है, वो अभी आपने पढ़ा नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो फेयरनेस, और मतलब आप फिर अपने हिसाब से ऐसे इंटरप्रिटेशन नहीं करो ना। अगर आप अपना इंटरप्रिटेशन करोगे तो आप क्वेश्चन गलत कराओगे। आप देखो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उस हिसाब से चलो। अगर मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि जो आपने पढ़ा है आप उस पर भरोसा करो। आप अपने दिमाग पे, स्पेशली पॉलिटी में, इंटरप्रिटेशन पे मत चलाना दिमाग, कि आप खुद से इंटरप्रेटर बन जाओ कि अरे ऐसा है तो ऐसा हो सकता है ना। जो पोजीशन आप जानते हो कोर्ट की, बस उसी को मानो। अगर बहुत सारे क्वेश्चन, मैं आपको एक अपना इंसिडेंट बताता हूँ। आई वॉज गिविंग दिस एग्जाम इन 2016। उस टाइम क्या हुआ कि एक क्वेश्चन था, कुछ राज्यसभा का क्वेश्चन था, और मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद मुझे पता था, लेकिन मैंने वो क्वेश्चन गलत कर दिया, ज़्यादा दिमाग चला के, ज़्यादा मैंने इंटरप्रिटेशन कर लिया उसका। और आप मानोगे कि मेरा डिफरेंस कितना था? एग्जैक्टली 1 मार्क्स से आई मिस दैट। एग्जैक्टली 1 मार्क्स से मैंने मिस किया था। आप सोचो, मैं अपना फालतू का दिमाग नहीं चलाता तो चीज़ें कुछ और हो जाती। इस जबकि मैं जानता था, लेकिन मैंने इतना फालतू का पढ़ लिया ना, और खुद से इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दिया। तो मैं वही पॉलिटी में आपको बोलता हूँ कि जो आपने पढ़, क्योंकि यूपीएससी, मैं जितना आपको बता रहा हूँ ये बियॉन्ड है। अब यूपीएससी इस टाइप की क्वेश्चन पूछने लगी, जैसे ये चीज़ है, अगर हम एक केसेस डिस्कस नहीं करें तो आप नहीं समझ पाओगे। आर्टिकल 21 पढ़ के तो आप नहीं समझ पाओगे। मेरी बात आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये सब ये कुछ है यस सर। ये लक्ष्मीकांत में लिखा है ड्यू प्रोसेस के बारे में कुछ इस तरीके का। एक बार मैं देखता हूँ, मतलब मुझे पता नहीं है, बट
सर एक क्वेश्चन था। आपने जो मेंस के क्वेश्चंस दिए थे सर, मैं अब लिख करके सबमिट कर सकती हूँ क्या आपको? हाँ, आप कर दो। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। सो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ी सी चीज़ें आपको जो है पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा सा अंदर जाएगी कि अब पूछ रही है यूपीएससी इंटरप्रिटेशन। अब ये आप, लेकिन आपका इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, ये कोर्ट का इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ये तो डिफरेंट चीज़ है ना। इसमें हम ड्यू प्रोसेस का एलिमेंट लेके आए हैं, लेकिन ये चीज़ तो अलग है ना। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में आपने नहीं देखा कि एक ये चीज़ टोटली डिफरेंट है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर आप इंटरप्रिटेशन को जाओ तो ऐसे तो बहुत कनेक्टेड है, यस सर। लेकिन जो पोजीशन इस्टेब्लिश्ड है हम सिर्फ उतने ही देखेंगे। देखो, बेस्ट इसका आंसर है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। फिर इसके बाद अगर पॉसिबल है तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम इसको सोच सकते थे बाद में कि ये थोड़ा बहुत समवॉट मिक्स्ड एलिमेंट है, ठीक है। बट इक्वलिटी बिफोर लॉ तो अलग ही चीज़ है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है कि जितने सिटीजन्स हैं, आप एक चीज़ देखना, आपको मैं समझाता हूँ। जितने सिटीजन्स हैं या नॉन सिटीजन है या एवरी पर्सन है, ठीक है, वो सबके सब इक्वल है। मतलब मान लो कि आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था सबको कि अगर जीएसटी लगना है तो जीएसटी के लिए तो हम ऐसे तो जीएसटी लगा नहीं रही है सरकार। जीएसटी के लिए कानून आया कि नहीं आया? आप ही बताओ। विनीत बताओ मुझे, जीएसटी के लिए कानून आया कि नहीं आया? सर आपकी आवाज नहीं आई। अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जीएसटी के लिए आया कि नहीं आया? यस सर। तभी उन्होंने लगाया। यस सर। ठीक है, अब एक चीज़ समझो आप। अब जीएसटी का जो कानून है उसने क्या कर लिया, मान लिया। अब जैसे मान लो विनीत आप कमाते हो 5,000 रुपये, ठीक है, और मैं कमाता हूँ मान लो 50,000 रुपये महीने का। आपको भी 18% जीएसटी पे करनी है और मुझे भी 18% जीएसटी पे करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि ये जीएसटी तो हम दोनों को बराबर मानता है, 50,000 वाले को भी और 5,000 वाले को। पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? ये तो हम दोनों को बराबर मानता है, बट हम लोग बराबर हैं क्या? एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ सैलरी नहीं है ना। अगर आपने जीएसटी दिया 900 रुपये दे दिया आपने जीएसटी, ठीक है, तो आपके पास 4100 रुपये बचे। वैसे ही मान लो कि आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो मैं कहाँ था जब ये डिस्कनेक्ट हुआ मैं? जीएसटी लॉ। हाँ, जीएसटी लॉ के ऊपर। तो मान लो कि आप 5,000 कमाते हो, मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ, ठीक है। अब इस लॉ ने कह दिया कि भाई 18% पे करना है, 18% पे करना है। अब आपने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा 2,000 रुपये का, और एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा मैंने 2,000 रुपये का। आपका कितना जीएसटी लगा इस पर? 360 रुपये, ठीक है। मेरा कितना लगा जीएसटी? 360 रुपये। आपके पास मोबाइल ख़रीदने और इसके बाद करके 2360 आपका स्पेंड हो गया, ठीक है। कितना बच रहा है आपके पास? समथिंग कुछ इतना बच रहा है, 2640। यस सर। ठीक है, तो आपका तो, आप अगर ये 360 नहीं देते तो आपको 3,000 रुपये बचता, ठीक है। तो आप ये समझो कि आपके पास आपकी सैलरी का कितना परसेंट बचा है
और मेरे पास मेरा कितना गया, मैंने 2000 का फ़ोन लिया, ठीक है, 2300 रुपये गए, और इसके बाद जो है मेरे पास तो ठीक ठाक पैसे बचे हैं। अगर मैं जीएसटी दे दूँ ना दूँ तो 48,000 बच रहे हैं, और जीएसटी दूँ तो इसमें 360 रुपये आप और कम कर दो। तो अल्टीमेटली आई विल बी हैविंग मोर मनी, यू विल बी हैविंग लेस मनी। तो जो कम पैसा कमाता है उसको थोड़ा पैसा देने में दिक्कत होगी। 360 रुपये आपको थोड़े ज़्यादा भारी पड़ेंगे इन कंपैरिजन ऑफ मी। मैं 50,000 कमा रहा हूँ, 360 दे सकता हूँ। पॉइंट समझ रहे हो आप मेरा? तो ये Yes, जो sir. इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इसने हम दोनों को एक जैसा ट्रीट कर लिया, इसलिए हम लोगों पर 18% लगा दिया। अगर इसको पता होता कि भाई विनीत की अर्निंग 5,000 है और विनीत के खर्चे भी लगभग 4,500 रुपये की हैं, ठीक है, तो विनीत के लिए मुश्किल हो जाएगा। जबकि राहुल के खर्चे भले ही 10,000 के हैं, लेकिन ही इज़ सेविंग 40,000 रुपीज़। इस चीज़ को आप समझो। तो यहाँ इक्वलिटी बिफोर लॉ बात कर रहा है लोगों की, पर्सन्स की, ठीक है। और जो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये लॉ पे एम्फेसिस कर रहा है। आप समझ रहे हो ना? Yes, sir. तो अब दोनों एक जैसे कैसे हुई, आप मुझे बताओ। एक जैसे नहीं हुई, Different. डिफरेंट है ना? हाँ, तो फोर्थ तो आपका कट गया, हो गया ख़त्म। Yes, sir. फिर आपका सेकंड भी ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि हमको पता ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, ये भी हमें पता है। अब पहले और तीसरे में लोगों को कन्फ्यूज़न रहा, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. नहीं आया? Yes, sir. आ गया sir. चलो अब एक काम करते हैं, अब इसको यहीं बाइंड अप करते हैं।